this is Mohammad Arsalan and welcome back to the series of MySQL। और लास्ट क्लास तक हम टेबल्स बना चुके हैं, हमने एक ई-कॉमर्स टाइप का डेटाबेस भी बनाया। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ वी कैन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट records in our MySQL table, and also we are going to use the select statement as well, where we will be learning a lot more things about selecting the data or selecting the data from multiple tables together, or selecting the desired columns which are not stored in the database but we need to calculate them on one time. So let's move to PHP My Admin panel where we will be writing the code for MySQL। Okay, here we are. So this is our database. ये हमारा last class तक का database है, where we have a table for customer, where we have a table for orders and products. Okay, so in today's class, first of all, we are going to select e-commerce। सबसे पहले e-commerce select करेंगे, and as you can see कि हमारे पास तीन tables हैं। So let's move to SQL, and here we will be writing the SQL query। Okay, so let me zoom it a little so we can clearly see this, and just close this for collapse this and write a statement। So first of all I am going to write insert some customers। Okay, तो सबसे पहले इसमें insert के लिए आप लिखेंगे insert into and then you will write the table name। So what हम इससे क्या करें, हम customer में insert करने वाले हैं। Okay, then we have to specify the columns। फिर हम columns specify करेंगे यहाँ पे, and to make sure that what columns we have, so let's move here। Okay, as हमने id को auto increment पे रखा हुआ है, so we don't need to mention id here। Okay, so how are we going to insert this? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे first name, so this will be first name in a string format। We have to write the column name here, first name, like this। Okay, then we will write last name, and after that we will enter the email, then we have contact number, then we have address, and then we have deleted। Okay, now we have specified all the columns के ये वो तमाम columns होंगे जिनको हम insert करने वाले हैं, ठीक है। So you can write them in different order, it does not matter। Now values का keyword use होगा, and one by one जो column आपने use किया उस column के लिए आप value को यहाँ पे set करेंगे। So like I'm saying Mohammed, ठीक है, for the first name, and for the last name I'm saying Arsalan, and in the email I'm going to write my own email, right, and in the contact we will be writing and this will be the address, and for default we can write 0। okay, so as हमने deleted के लिए default 0 set किया हुआ है, so we can ignore the column here as well। ये make sure कीजिएगा कि जिन columns के लिए आप default set कर चुके हैं, and if you are going to save that column with that default value, then you do not need to specify the column in the insert keyword। like delete जो है वो default 0 होता है, and I have to save 0, so I don't need to specify unless if I don't have to save 1। अगर मुझे उसमें 1 सेव करना होगा तो मैं स्पेसिफाई करूँगा, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई दैट कॉलम इन दिस insert statement। okay, so this is the simplest query to insert the records। first आप बता रहे हैं कि insert करें कस्टमर के टेबल में, इन कॉलम्स की वैल्यूज़ को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, एंड विद दैट फॉर्मेट यू आर स्पेसिफाइंग दिस। okay, so let's just execute this one, press the go button, and as you can see that one row inserted, you have inserted the one row successfully। let me open that customer table in a new tab, and आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ द वन रिकॉर्ड। ओके, एंड एज आईडी इंक्रीमेंट थी ऑटो इंक्रीमेंट, तो उस पर खुद ही वन आ जाएगा, और डिलीटेड हमें ज़ीरो ही सेव करना था तो हम ज़ीरो रखवा देंगे। सो लेट्स एडिट दिस क्यूरी बैक अगेन एंड इंसर्ट द न्यू यूज़र। दिस विल बी साजिद, and I am changing a username a little bit, and also the number a little bit, and obviously the address as well। okay, अब ये मेक श्योर करें कि जब आपको एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट करना हो, लाइक मुझे 3 4 5 यूज़र एक साथ इंसर्ट करने, तो व्हाट आई विल डू कि मैं बार बार इस तरह से नहीं लिखूँगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे कॉमा लगा दें, ठीक है, एंड जस्ट कॉपी दिस लाइन अगेन
और पेस्ट कर दें यहाँ पे, एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। इट मीन्स कि आप इस इंसर्ट स्टेटमेंट के ज़रिए 5 रॉज को इंसर्ट करने वाले हैं, बिकॉज यू हैव स्पेसिफाइड द वैल्यूज़ 5 टाइम। So let's change the user little bits and make it semi. Make it semi here as well. Little small differences we need here. Okay, थोड़े थोड़े से changes कर लेते हैं इनमें ताकि आप इनको वहाँ पे apply कर सको. Okay, and names a little bit. And here it is. Okay, so these are the queries जिस by this कि हम multiple rows को insert कर सकते हैं, ठीक है. And let's try to execute this, so hopefully we will get the result that 5 rows inserted. So let's press go and you can see that 5 rows inserted, ठीक है. Inserted row ID 6 because वो आपको last query की जो ID दिखाने वाला है वो यही है. एक बार आप इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे ब्राउज के ऊपर, it will load up all the values for you. तो with this statement हम क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है. सो नाउ इज़ द केस फॉर अपडेट. लेट्स सी कि मुझे अपडेट करना है, ठीक है. आई वांट टू चेंज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर दिस पर्सन, लाइक आई वांट टू चेंज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर साजिद. ओके, तो साजिद के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहता हूँ. सो फॉर दैट केस मेरी क्यूरी क्या होगी, ये तो हमारी इंसर्ट की क्यूरी थी, ठीक है. फॉर दैट केस हमारी अपडेट की क्यूरी क्या होगी, अपडेट कस्टमर. Okay, then set, and what are we going to set, we are going to set the contact number. Okay, and equal आप बताएंगे कि आप क्या contact number लिखने वाले, ठीक है. So I will just copy that contact number. मैं इस contact number को copy करता हूँ, ठीक है. and simply हम जाके इसको यहाँ paste कर देंगे and I am making it 222. सही, तो अभी हमारा जो नंबर है वो 707 पे एंड हो रहा है एंड राइट आफ्टर द अपडेट व्हाट हैपेंस कि आप उसको जो है वो 222 करने वाले. ओके, नाउ द थिंग इज़ हेयर कि अगर मैं इस अपडेट की क्यूरी को यहाँ पे ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ, व्हाट विल हैपन कि ये तमाम कस्टमर्स, यानी सो फार जितने भी हमने इसमें 6 कस्टमर्स ऐड किए हुए हैं, इट विल ट्राई टू अपडेट ऑल द कस्टमर कॉन्टैक्ट्स विद दिस क्यूरी. यानी इस क्यूरी से ये तमाम कॉन्टैक्ट्स को अपडेट कर देगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की फॉर अस बिकॉज हम एक ही बंदे के साथ, सॉरी, एक मल्टीपल बंदों के साथ सेम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं सेट कर सकते. एंड विद दिस आपके साथ ये भी नुकसान हो सकता है कि दैट यू कैन लॉस द डेटा एज वेल. आप अपना डेटा जो है वो ज़ाया कर सकते हैं बिकॉज आप फिर भूल जाएंगे कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर किसके लिए था अगर आपने अपडेट की कमांड को ऐसे ही चला दिया. बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर यूज़र यानी कि साजिद के लिए चलाना चाह रहा हूँ एंड आई नो द आईडी फॉर साजिद. साजिद की आईडी मुझे पता है कि वो 2 है, इट्स द प्राइमरी की. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल राइट वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 2. सो व्हाट आई एम सेइंग विद दिस कमांड कि मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर्स में जाके आप सिर्फ उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करेंगे जिसकी आईडी 2 होगी एंड वी नो कि 2 दोबारा कभी रिपीट होगा नहीं, ठीक है. सो इट मीन्स ओनली साजिद इज गोइंग टू बी अपडेटेड विद दिस वन. सो लेट्स ट्राई दिस. Okay, one row affected, right? And let's browse this again and you can see that here is 222, right? So this is the way how you can update a particular record by specifying the particular column as well. And what if I have to update 2 columns? What if I have to update the email as well for Sajid? It's not Gmail, it's Hotmail. So what I have to do, I will write like this: email is equal to this one, and in email I will say sajid@hotmail.com. ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अगेन इसका चेंज कर देता हूँ, 222 के बजाय मैं 333 कर देता हूँ ताकि वी कैन सी द डिफरेंस हेयर एज वेल.
सो व्हाट आई एम डूइंग विद दिस, हम क्या कर रहे हैं, हम दो कॉलम्स को अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. द वन कॉलम इज कॉन्टैक्ट एंड द अदर कॉलम इज ईमेल, right? And for what we are updating, we are updating only for the person holding the id equal to. So let's press go. Okay, so the command succeeded. Let's browse this again and see the difference. Sajid at gmail and 222. After browsing, it's Sajid hotmail.com and 333. So what happens with this कि इस क्यूरी के साथ आप मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट भी करवा सकते हैं. सो दिस इज़ द कमांड फॉर अपडेटिंग द कॉलम. अगर आप ये आईडी नहीं लगाएंगे सो व्हाट हैपन, पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव फॉर डिलीट. डिलीट फ्रॉम customer. Okay, what is delete from customer? If I say delete from customer means I am going to empty this table. ये पूरा टेबल एम्प्टी हो जाएगा. सेम एज द केस फॉर अपडेट, बिकॉज अगर आप अपडेट में वेयर का क्लाउज नहीं लगाते तो वो पूरे टेबल पे चलेगा. अगर आप डिलीट में वेयर का क्लाउज नहीं लगाते तो वो पूरे टेबल पे चलेगा. यू कैन नॉट डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड. मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इस पर्सन के लिए ये कॉलम डिलीट कर दें. नहीं, आप पूरा कॉलम डिलीट करेंगे तो पूरे टेबल में से जाएगा. हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इस कॉलम को आप एम्प्टी करवा लें इसके लिए, ठीक है. बट वी आर गोइंग टू डिलीट द रिकॉर्ड. सो व्हाट हैपेंस, अगर आप यहाँ पे ऐसे ही कस्टमर चलाओगे तो क्या होगा कि पूरा टेबल एम्प्टी हो जाएगा. बट व्हाट इफ यू राइट लाइक दिस, id equal to, so this is only going to be executed against this record. okay, it means कि साजिद का रिकॉर्ड यहाँ से आपके पास से डिलीट हो जाएगा अगर आप ये कमांड चलाते हैं तो. so let's try this. go, and it's asking you the confirmation, do you really want to delete from this? so I said yes. okay, तो एक रॉ यहाँ से डिलीट हो गई होगी. वी हैव टोटल 6 रॉज हेयर. आफ्टर ब्राउजिंग रिफ्रेशिंग दिस यू विल नॉट फाइंड दिस रिकॉर्ड अगेन. सो लेट्स सी. ओके, तो देख सकते हैं आप 1 के बाद अब 3 रह गया. सो मीन्स के 2 लॉस हो चुका है, ठीक. बट फॉर द सेफ साइड हम ये चीज़ भी डिस्कस करते चलें, बिकॉज जो आगे जाकर हमें आसानी होगी. हम कभी भी डिलीट फिजिकली नहीं करवाएंगे. वी विल ऑलवेज मेंटेन द फ्लैग हेयर, ठीक है. हम सिर्फ इस फ्लैग की बेस पर डिलीट करवाया करेंगे. लाइक अगर आपको किसी को डिलीट करना भी है सो यू विल राइट द अपडेट कमांड, अपडेट कस्टमर सेट डिलीटेड equal 1 where id equal 3. ओके, सो विद दिस क्यूरी आप क्या करेंगे, जो नंबर 3 कस्टमर है आपका, आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डिलीट का फ्लैग 1 कर दें. इट मीन्स कि आप जब अपने इस कोड, अपने इस टेबल को अपनी किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे कि आप ऑलवेज डिलीटेड 0 वाले उठाने वाले. विद दिस आपके पास से डेटा ज़ाया नहीं होगा. यू विल होल्ड द डेटा. एंड ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ को डिलीट नहीं किया जाता, उसको हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है. उसको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मेंटेन करके रखा जाता है, इसीलिए ताकि आपके पास से डेटा लॉस ना हो. और अगर कभी आपको उसे नॉन डिलीट बनाना हो तो आप सिंपली इस फ्लैग को 0 कर देंगे, वो रिकॉर्ड आपके पास वापस आ जाएगा. ओके, so now we have studied the insert, update and delete commands. Let's move for the select as well. Select all from customer and this will bring all the records for you. So let's execute this. तो कस्टमर के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ये सब यहाँ ब्राउज करके ले आएगा, ठीक है. What if I say, अगर मैं कहना चाहूँ कि सिर्फ वो कस्टमर्स लेकर आएँ जो कि डिलीटेड हैं, तो कैसे होगा. आप यहाँ लिखेंगे वेयर डिलीटेड इक्वल 1, ठीक है. यानी जिन कस्टमर्स को हम डिलीट कर चुके हैं सिर्फ वो कस्टमर देखना चाहते हो. सो विद दिस वी कैन सी दिस वन. अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने डिलीट तो कस्टमर नंबर 2 भी किया था जो कि साजिद था. वो यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज वो फिजिकली डिलीट हो चुका है, ठीक है. तो डिलीटेड रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं आएंगे. बट इफ़ यू डिलीट द रिकॉर्ड विद अ फ्लैग, अगर आप एक फ्लैग की मदद से डिलीट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सफिशेंट और एक प्रोफेशनल वे रहेगा, ठीक है. सो सिंपल इज़ दैट कि एक सेलेक्ट की कमांड ये होगी. सेलेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये दिखा सकते हैं, ठीक है. बट आई वॉन्ट टू डू दिस कि मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, ये मैं अलग अलग नहीं दिखाना चाहता. आई वॉन्ट टू मेक अ फुल कॉलम. आई वॉन्ट टू मेक अ कॉलम फॉर द फुल नेम. सो फॉर दैट केस क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे एंड दैट फंक्शन इज़ concat. मीन्स इट इज़ गोइंग टू concatenate 2 strings एंड उसमें आप बताएंगे कि फर्स्ट नेम कॉमा
देन आप एक स्पेस देंगे, कॉमा, और फिर आप बताएंगे कि लास्ट नेम। मीन्स एक स्ट्रिंग होगी फर्स्ट नेम की, एक स्ट्रिंग होगी इस स्पेस की, और एक स्ट्रिंग होगी इस लास्ट नेम की। विद दिस ये तीनों स्ट्रिंग्स आप इस कॉनकैट के फंक्शन को देंगे और उन तीनों को आपस में जोड़कर आपको एक रिजल्ट देगा विच विल बी द फुल नेम। यू कैन सी हियर। ओके, अब ये जो कॉलम है आपका, उस कॉलम का नेम कुछ वियर्ड सा आ रहा है बिकॉज ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है या जो भी आपने फंक्शन यूज़ किया, ये फंक्शन ही आपके कॉलम का नेम बन गया है। बट आई डोंट वांट दिस, सो फॉर दैट आई विल यूज़ ए एस। ए एस मीन्स एलियास, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि फुल नेम, यानी इसका नाम हम एक तरीके से रख देंगे कि जो कि नाम होगा फुल नेम। लेट्स एक्सिक्यूट। ये देखिए फुल नेम आ गया। वॉट इफ़ आई वॉन्ट द स्पेस इन द कॉलम नेम। कॉलम नेम में आप याद रखिएगा स्पेस नहीं दे सकते। जब आप टेबल बना रहे होते हैं उस वक्त आप टेबल पे जो कॉलम का नेम देते हैं उसके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू मेंशन द स्पेस, आप उस पर स्पेस नहीं दे सकते। बट इफ़ स्टिल यू वांट टू सी द स्पेस इन द कॉलम नेम, सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो एलियास यूज़ करेंगे उस एलियास को आप एक स्ट्रिंग में रख लेंगे एंड देन आप उसमें स्पेस दे देंगे। आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि उस कॉलम का जो हेडर होगा उसके अंदर आपको स्पेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन insert into a table, update a table, delete a table, and select the table as well. Okay, that's it for now today. So if you have any question, then feel free to contact to me. You can ask me or you can comment your question as well. Till then, take care. Have a good day. Allah Hafiz.